Students who have just joined the session, I'm quickly going to recap what we have done right now. देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, many students are just joining the session. So we have discussed so far that in today's lecture, which is an introductory session, I'm going to first make a list of all the topics that are important in Indian polity that you have to revise at least 3 to 2 times before your prelims examination. Okay. All the topics which are relevant from the perspective of prelims that we are going to note down. Topics important for mains we are going to note down. Okay. Third important thing we are going to do is we're going to share list of 2 books that you must have while you are in this batch. Okay, 2 books जो आपके पास होनी ही चाहिए जब आप इस बैच में हो. I'm going to share the book's name and link on the group. Third, I'm going to take your doubts. ठीक है, मैं आपके थोड़े से doubts लूंगी. That would be the introductory session today, so that you get a clear picture of what you are diving into. There are students who are just in college or who have just been graduated. They don't know anything about Indian polity. So we are going to discuss what exactly is Indian polity. CA means current affairs. Okay, ये CA मतलब होता है current affairs. First important topic is Indian Constitution. For Indian Constitution, students end up buying DD Basu book. You don't have to buy that book until and unless you are a PSIR optional student or a public administration optional student or a law optional student. If you have any of these 3 subjects as your optional, then you have to study DD Basu. If you don't have these subjects as your optional, don't go for DD Basu. It's not the part of your study. In Indian Constitution, we have to study for pre and mains, we have to study the basic concepts. ठीक है, basic concepts of what we have to study, the 4 NCRTs 11th 12th की जो 4 total NCRTs है. In class 11th we have 2 NCRTs, in class 12th we have 2 NCRTs, total 4 NCRTs. In this year's prelims, there were 2 questions from Indian Constitution. That means 4 marks directly from Indian Constitution. In Indian Constitution, we have historical background of Indian Constitution, the first chapter of M. Lakshmikant. इसको at least 3 बार revise करना है. This is very important. This year's prelims also had 2 questions from this chapter. ठीक है, that means again 4 marks यहीं से आ गए थे. And you know, एक mark की value है. I have seen so many students this year who could not qualify prelims just because in paper 1 they were lacking from 3 marks. मतलब 3 नंबर से 2 नंबर से रह गए GS paper 1 में. That is why they could not qualify. CSAT they cleared, but paper 1 में रह गए. So that is little painful. ठीक है, तो इसीलिए वी हैव टू मेक श्योर कि जो टॉपिक्स थोड़े कम नंबर के भी है ना, उसको अवॉइड नहीं करना. चार्टर एक्ट वाला क्वेश्चन केम इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स एंड द स्टूडेंट्स हु कुड नॉट क्वालिफाई फॉर 2 marks or 3 marks, they told me कि मैम चार्टर एक्ट वाला क्वेश्चन वी मार्क्ड इट इनकरेक्टली. राइट, वी गॉट कंफ्यूज्ड because we did not revise the historical background, the first chapter of M. Lakshmikant. We thought it's very easy. UPSC is never going to look at this chapter. तो 3 पेज का 4 पेज का इतना इजी चैप्टर है, इसको कौन देखेगा? एंड यूपीएससी मेड अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट चैप्टर ओनली. वी कैन नॉट अवॉइड दिस चैप्टर. ठीक है. सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वी आर गोइंग टू स्टडी फंडामेंटल राइट्स. बेसिकली द लॉ ऑप्शनल स्टूडेंट्स दे स्टडी फ्रॉम आर्टिकल 1 to article 395, but we'll study some 20 to 25 articles only with examples. These examples will be from current affairs, CA means current affairs, and from personal experiences. And personal experiences, whenever I'll quote my personal experiences in class, you have to write it down because it's going to help you in recalling things. ठीक है, जो पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तो वो ज्यादा याद रहते हैं in comparison with those which we have read in the current affairs. Some hypothetical experiences and examples I'll create, ठीक है, in this batch. So that, and you have to write it down so that you can relate to it and recall things very clearly till your mains तक याद रहे. I'll also tell you when to quote these experiences in your essay paper or in your paper 2. कहाँ ये experiences आप quote कर सकते हो actually. I'll teach you how to frame answers because I'm teaching Shaktiman right now how to frame answers. ठीक है, तो मैं शक्तिमान को पढ़ा रही हूँ कि भाई आंसर्स कैसे फ्रेम करते हैं. इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, सेम थिंग आई एम गोइंग टू टीच यू एज वेल बिकॉज अभी मेरा चल ही रहा है शक्तिमान के साथ, तो वही सेम नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगी. ठीक है, मेक अ वेरी प्रिसाइज नोट इन योर रजिस्टर whenever you are in my class. I will prefer flow charts. I'll give you handmade notes, don't worry, कोई इसमें डाउट नहीं है. डेली I'll give you handmade notes, but in the class I'll not share the notes. मतलब in this live lecture I'll not show you the notes, I'll upload it on the group.
इन द लाइव लेक्चर वील मेक नोट्स, लाइव लेक्चर में हम नोट्स बनाएंगे, क्योंकि फिर वरना आपको नींद आ जाएगी. इफ यू जस्ट वॉच द स्क्रीन एंड सिट एंड अंडरस्टैंड थिंग्स, यू विल फॉल asleep. इट इज पॉलिटी, इट इज बोरिंग, आई अंडरस्टैंड इट. ओके, मुझे भी नींद आ जाती है अगर मैं देखकर पढ़ाऊं आपको. सो आई विल मेक यू draw the notes, and our notes will be in this format. Can you see the screen, everyone? Please let me know in the chat section. Everyone can see the screen. Chat section में type करके बता दो एक बार, ठीक है? So you can see I have not written paragraphs. You can notice it. मैंने paragraphs नहीं लिखे हैं. What did I make on the screen? Please let me know in the chat section. Type करके बताओ what is it? In what format am I writing? कौन बताएगा chat section के अंदर? मेरा chat section एकदम open है. Flow chart. Ashok, very good. Akansha, very good. Amritansh, very good. Yes, this is flow chart. Now you are understanding. Students say, ma'am, flow chart, I don't know how to make it. Is it tough now? And I hope you are noting it down in your register. So you also have made a flow chart. उम्मीद कर रही हूँ आपने ये note down किया है, तो आपने भी बना लिया flow chart. Okay, it is not tough. Everything is very easy. You don't have to worry about anything. Next important point that we are going to study in the first topic, Indian Constitution. Schedules. This is UPSC's most favorite topic. Schedules of Indian Constitution. UPSC focuses on 7th schedule. इतना focus करता है भाई. He loves, UPSC loves 7th schedule. 9th schedule. ये जो मैं लिख रही हूँ schedules के नाम, इनको लिख लो. ये आपको specifically news में identify करने हैं. Whenever you read the Hindu newspaper from now onwards, whenever you come across any of these schedules, you have to post it on the group. And I'll open the messaging services on the group. आप message भी भेज सकते हो group पे, अभी तक open नहीं था. Whenever you come across any schedule in the newspaper, you have to, post it on the group. आपको group में इसको post करना है, ठीक है? Click the picture and post it on the group. We are going to study schedules. We are going to study parts of Indian Constitution. हम क्या पढ़ने वाले हैं? Parts पढ़ने वाले हैं Indian Constitution के, ठीक है? What are the parts of Indian Constitution? We have different parts: part 1, part 2, part 3. Part 1 deals with union territory, union and its territory, ठीक है? Part 2 deals with citizenship. Part 2 किससे deal करता है? Citizenship से. Part 3 very famous, fundamental rights. बहुत famous है fundamental rights. Part 4 और भी famous, DPSPs, directive principles, ठीक है? Fundamental right is the right given to you, है ना? DPSP is journal directives. मतलब होता है ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, जर्नल बात है. You should not lie. It's journal directive that your parents give you. You should not lie, you should not steal. Same way, the government also gives us DPSPs. And the government is also following certain DPSPs. है ना? So we'll study this in detail. Don't worry. Examples के साथ मस्त पढ़ेंगे इसको. Then we have part 4A. DPSPs का सगा भाई. Fundamental duties. ठीक है? Big brother, small brother. Write it down. Small brother of DPSP. 4A. Fundamental duties. Again, these are not mentioned specifically in the Constitution. These are something that you must obey, must abide with. Part 5 में क्या आ जाता है? The Union के बारे में. ठीक है? Very famous and very important part of UPSC. और ये article आपका यहाँ पर 52 से आता है 151 I guess. ठीक है? Article, this is article 52 to 151. ये हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. The Union is very important. This is where your domain lies. ये वो एरिया है जहां पर एज IAS और IPS और IFS आपका डोमेन आता है. समझ गए? यहां से आपको बहुत कुछ ऑर्डर्स मिलने वाले हैं. यहाँ बहुत कुछ इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है. आफ्टर लेट्स से 20 years you are going to clear UPSC 2024 में, right? Then after that, when once you are given your allotted area जहां पर आपको administer करना है, कार्डर मिल जाएगा. once you will be given your कार्डर, then after 20 years of that, यहाँ पर आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है? we'll discuss that. आपको जो यहाँ पोजीशंस एंड मिनिस्ट्रीज अलॉट होंगी, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव माय मासी हु इज in the Ministry of Education. She once was in sports mein she was working, now she is in Ministry of Education, and she tells me every day ki this chapter, Arpita, you cannot skip this chapter if you are teaching it. And when I used to prepare, tab bhi she used to tell me this chapter you cannot skip. This is your soul in UPSC. That is why we are going to study it in detail. ठीक है? Don't worry, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है.
सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज शेड्यूल्स आ जाते हैं। देखो पार्ट तो समझ आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, एवरी कैटेगरी हैज बीन अलॉटेड अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है, वो तो आ गया आपका पार्ट का। schedules क्या होते हैं, what are schedules then? We have parts, then we have schedules. What are schedules? These are basically tables. In M. Lakshmikant book, I'll show you one table, don't worry. Okay, everyone can see this. If you have the book, open page number 2.10. अगर आपके पास बुक है M. Lakshmikant, open page number 2.10. You have table 2.6. Let me know in the chat section if you have opened page 2.10 in M. Lakshmikant book. You have to keep your book with you, okay? मतलब at some point I will be asking you to opening up your book to certain pages to highlight, ठीक है? कुछ चैप्टर 2-3 पेज के हैं, वो उसका मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी, वो मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी लाइव, ठीक है? Everyone can see page 2.10 in their book, okay? Table 2.6, tell me in the chat section what is the heading of the table? Chat section में चांदनी, मनीषा एंड चांदनी जल्दी से बताओ, कांशा, what is the heading? Table 2.6. Very good, Ashok. Very good. Time taken by the framers of other constitutions. So what is a schedule? क्या होता है schedule? Schedule are basically tables which contain some additional details which is not mentioned in articles. So write it down. लिखो फटाफट से. Schedules क्या हैं? What are schedules? These are tables. ठीक है? Example लिखो जल्दी से. Example page 2.10 M. Lakshmikant, ठीक है, so that when you are revising after 6 months you will be able to recall, ठीक है, tables which are or which contains additional, you can write extra, additional details which are not mentioned in the articles. Articles में जो details mentioned नहीं है वो extra tables में डाल देते हैं, ठीक है, those details are put in the tables because अब now articles have been created. Now where to write about these additional extra value added facts? So they created schedules. उन्होंने schedule बना दिया. I'll give you another example to understand it because this was the question asked by, I don't remember the name, अभी किसी ने पूछा था ये question, है ना? Because ऐसे question आ जाते हैं in interview. I am not just preparing for prelims, I am preparing you for interview also. So let's say कि आपने notes बनाए, ठीक है, you have made notes, you are in my class and you are making notes. After the class, you are reading the Hindu newspaper and we studied about the topic president. You came across something in the newspaper regarding president. And this was extra value added fact that you came across. So you will take a sticky note, a yellow color का paper or white color का paper. I have this sticky note, ठीक है? मेरे पास ये हमेशा handy रहता है. Any extra thing or note or information I come across, I write in these sticky notes, ठीक है? So you will take a sticky note, stick it in your register and write the extra information जो आपको मिली है. This is schedule and this is article. अब बताओ clear हुआ कि नहीं? जल्दी से बता दो. भूलोगे? Will you be able to explain it to the interview board if they ask you ऐसी fun में कि भाई बताओ schedule और parts में क्या difference है? अब कोई भूलेगा मेरी क्लास में, जल्दी से बताओ. क्लियर हो गया सभी को? वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स थे, कौन बताएगा चैट सेक्शन में जल्दी से? आर ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी पार्ट्स वर देयर? कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? जल्दी से चैट सेक्शन ऑन है, फटाफट से बता दो. 8, 7, नो, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स थे. ओरिजिनल बिल्कुल 22 पार्ट्स थे. 395 आर्टिकल्स थे. लिख लो, इसको नहीं आता तो जल्दी से लिख लो फटाफट, आज कुछ नया सीख रहे हैं. वी आर लर्निंग समथिंग न्यू टुडे, है ना? 22 पार्ट्स ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, OIC, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स. लेटर 3 पार्ट्स वर एडेड टू इट. लेटर मॉडिफिकेशन तो होती है ना, 3 पार्ट्स और ऐड कर दिए लेटर ऑन. 3 पार्ट्स वर मोर एडेड. अमेंडमेंट्स टोटल हुए एंड अमेंडमेंट्स के बाद टोटल नाउ देयर आर 25 पार्ट्स. ठीक है, सोहम आई विल टेक योर डाउट, डोंट वरी. एक बार ये एक्सप्लेन कर दो, देन आई विल टेक ऑल डाउट्स. ठीक है, सो पार्ट्स क्यों बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? टू गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. आपको ऊपर ऊपर से समझ तो आए. फॉर एग्जाम्पल यू आर दिस इज माई एम लक्ष्मीकांत बुक, पेज नंबर स्टार्टिंग पेजेस, इंडेक्स वाला पेज कंटेंट वाला पेज देख रहे हो. दिस इज लाइक पार्ट्स. दिस इज गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ द बुक.
ये जो कंटेंट वाला पेज है, these content वाला pages, this index of the book, it is giving you an overview कि this is what you are going to find in the book. That is the part. ठीक है, अभी समझ आ गया सबको यहाँ तक? पार्ट्स और शेड्यूल में डिफरेंस समझ आ गया? तो ये तो हम पढ़ने वाले हैं. दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है. आज इंट्रोडक्टरी सेशन था बिकॉज सम स्टूडेंट्स हैव जॉइंड जस्ट टुडे. अभी 2 मिनट पहले इनरोलमेंट हुई है, 5 मिनट पहले इनरोलमेंट हुई है. ठीक है, तो दे हैव नो आइडिया ऑफ इंडियन पॉलिटी. They know about UPSC, yes, they have started preparing for it, but this is a new subject for them. है ना? They are coming from engineering background. That is why this introductory session was important. Now, we are coming to the second important topic. ठीक है, अब हम second topic पे आ रहे हैं, which is preamble. This is UPSC's most favorite and aspirants इससे डरते हैं. Preamble, you cannot just study we the citizens of India. No, it is not that easy. Each and every word of preamble, each and every sentence in the preamble has deeper analytical meanings on which essays can be written. Sovereignty के ऊपर मैं आपको 12,000 words लिखकर दे दूंगी, इतना deep topic है. Only on the topic equality I can write 12,000 words. It's so deep. Each and every word in the preamble has a deeper implication. And when we study preamble वाला chapter ना, उस दिन we are going to take 2 hours. ठीक है, don't worry. Preamble में ही हम 2 घंटे invest करेंगे. Because I have so many examples with from my own life on preamble कि इस बैच में, इस चैप्टर में you will be prepared for essay also. ठीक है, इसी चैप्टर में, preamble के चैप्टर में मैं आपको essay के लिए भी तैयार कर दूंगी और essay based questions भी दूंगी. ठीक है, preamble basically क्या है? It has become more ambitious now. The words equality, it has a different connotation now. आज के टाइम में आप देखोगे there are so many people who are becoming woke. You must have heard about this term. एक्स्ट्रा अवेयर. ठीक है, बहुत वोक हो रहे हैं एकदम. सारी इनलाइटनमेंट अभी हो रही है बहुत लोगों को बिकॉज ऑफ द इंस्टाग्राम रील कल्चर, यूट्यूब शॉर्ट कल्चर. आजकल काफी इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग हो रही है एंड people are interpreting that information in a very different manner. है ना? Everyone is unique. Each one of us are unique. So people are taking that information in a very different manner and that is why we are becoming woke. Woke culture आजकल आ रहा है, westernism. ठीक है, so that is why the meaning of equality has just changed. आजकल आदमी और औरत आपस में लड़ने लगे हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इक्वालिटी इज. मैंने देखा है बिना वजह की बातों पे लड़ते हैं और कहीं से कई बात चली जाती है फिर मारपीट पे आ जाते हैं. आई हैव सीन दिस हैपनिंग. आई रिलेट विद यू all the examples. ठीक है, on the name of equality I have seen people doing violence. ठीक है, so we'll understand the real meaning of equality, real meaning of sovereignty. ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं. Then after preamble we have write it down the third important topic. Very important here is सिटीजनशिप. सिटीजनशिप हो गया हमारा, प्लस इसके साथ ही फंडामेंटल राइट्स. अभी रिसेंटली सिटीजनशिप के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आया है. जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ. 2019 में बहुत हल्ला हुआ था, वायलेंस हुआ था, मारपीट हुई है. जल्दी से बताओ, चैट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी से. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है साहिल, बट विच वन? दिव्यांश सिंह, एनआरसी. यस दिव्यांश. 20 ईयर तो मुझे पता है, कौन सी नंबर बताओ. गिव मी द नंबर जल्दी से एवरीवन. Soham is saying 101. Everyone else, there are 33 students in the class, only one is writing. I'm waiting for your reply. देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं. सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, जल्दी से बताओ. Sorish is saying 101. Article. Yes, correct Ashok. Very good. Very good Ashok. Very good. करेक्ट. और कौन सा एक्ट अमेंड हुआ था उससे, उस अमेंडमेंट एक्ट से? विच एक्ट गॉट अमेंडेड? बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, विच एक्ट गॉट अमेंडेड? कौन सा एक्ट अमेंड हुआ था? विच गेव एलिजिबिलिटी फॉर इंडियन सिटीजनशिप टू द परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज. हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस वर इंक्लूडेड. वो तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, बट उससे, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या, कौन सा एक्ट अमेंड हुआ था एक्चुअली? Citizenship Act 1955. Citizenship Act. Very good Ashok. Citizenship Act 1955. Very good.
बहुत ही बढ़िया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये जूम ओपन नहीं हो रहा। हाँ हो गया, सबको स्क्रीन दिख रही है ना व्हाइट वाली। सी सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सिटीजनशिप प्लस फंडामेंटल राइट, दे आर क्लब टुगेदर, यू कैन नॉट डेविएट इट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों साथ ही रहते हैं, ठीक है, बिकॉज वट एवर इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप ऑल्सो गारंटीज यू योर राइट्स। सिटीजन को ही तो राइट मिलता है, कुछ सिटीजन नहीं होते उनको भी राइट्स मिलती हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टुगेदर। After studying this together, we are going to focus on the DPSPs along with fundamental duties because both of them are brothers. दोनों भाई भाई हैं, तो हम इनको साथ में पढ़ेंगे with examples। महात्मा गांधी जी से लेकर आपकी खुद की लाइफ तक सारे एग्जाम्पल्स निकल कर आते हैं यहाँ। Even when you are riding a bike without helmet, वो भी यहाँ आता है। Even if you are driving your car without a seat belt, it also falls over here, ठीक है। Even if you are verbally abusing someone on streets, it falls over here. When you are protesting, you are burning the buses and whatnot, it everything comes over here. Right to protest, right to strike, सब कुछ यहाँ पर आने वाला है। This right to protest and right to strike, many students studied it in detail for this year's exam. उतना उसका यूज प्रीलिम्स में नहीं हुआ, बट मेंस में होने वाला है। So if you have cracked this year's prelims, मेंस के लिए this chapter is going to be really important, ठीक है। Then fifth important topic we'll study president plus vice president together. इसी के साथ we'll study governor and LG. ये सारे भाई भाई हैं। See their qualifications, their age, their powers, roles, responsibilities, duties, everything is boring, ठीक है। So we'll make a short table. हम इस तरीके से ना कंपैरिजन वाली टेबल बनाएंगे अपनी क्लास में। टेबल से 4-5 पॉइंट्स इनके पढ़ेंगे, जितना जरूरी है उतना। एम लक्ष्मीकांत में सर्टेन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू इन डिटेल, मतलब बहुत डेप्थ में, जो शायद रेलेवेंट भी नहीं है टू सम एक्सटेंट। तो वी आर गोइंग टू फिल्टर इट आउट because M Lakshmikant is written keeping in mind that you have public administration as your optional, because M Lakshmikant sir Lakshmikant ji public administration को भी पढ़ाते हैं, ठीक है। आपको पता होगा there are books on governance public administration by M Lakshmikant, so that is why this book is very heavy, इसलिए काफी heavy है। If you have PubAd then this book is your you can say Bible, ठीक है। अगर public administration है, ये book आपकी Bible है, याद रखिएगा। Sixth important topic we are going to study parliament प्लस पार्लियामेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, बिकॉज लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी दे आर लिंक्ड टुगेदर, ठीक है। एंड देन सेवेंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू नीड टू रिवाइज इज चीफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर प्लस देयर काउंसिल्स, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। अब मैं ये बता देती हूँ कितनी बार रिवाइज करना है, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू रिवाइज इट, ये बहुत जरूरी है। आई टोल्ड यू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर 3 times, इट इज अ मस्ट। After this batch gets over, please revise it at least 3 times. I'll make sure क्लास में ही आपको रट जाए, ठीक है, पर क्लास के बाद भी आपको रिवाइज तो करना है, ठीक है, भूलना नहीं है। The group of Telegram will be active till you give your mains 2024, ठीक है, ग्रुप तब तक एक्टिव रहेगा। तो ये मत सोचना आप 50-55 जितने भी बच्चे हैं कि मैम हमें छोड़ के चली जाएंगी आफ्टर completing this batch we'll delete the group, no, it will be active till you write your mains, ठीक है, so that the video lectures are available to you, unlimited availability, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है रिन्यू करने के लिए फिर से पैसा भरो, ये स्कैम मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। तो अनलिमिटेड लाइव अवेलेबिलिटी मींस 2024 तक रहेगा आपके पास। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगेन इसको आपको कम से कम 3 times रिवाइज करना है, बिकॉज इट इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। देन वी आर कमिंग टू स्केड्यूल्स, ये प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट फॉर प्रीलिम्स 2 times यू हैव टू रिवाइज अगेन, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए एंड इंटरव्यू में इट इज गोइंग टू हेल्प यू। पार्ट्स अगेन 2 times रिवीजन इसकी, उसी में रट जाएगा आपको, इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज मैंने पर्सनली किया है और मेरा दिमाग एवरेज से भी कम रहा है, ठीक है, और बार बार इसको रिवाइज कर करके शार्पन अप हुआ है। तो अब आई कैन टेल यू 2 times में रट जाता है, आई कैन टेल यू आई कैन गारंटी इट टू यू 2 times इफ यू आर रिवाइजिंग इट, योर माइंड विल स्टिल, मतलब आप 4-5 साल यूपीएससी से निकलने के 4-5 साल बाद भी आपको याद रहेगा, ठीक है, बन जाओगे ना डीएम एसडीएम, तब तक याद रहेगा, डोंट वरी। 2 times रिविजन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज I'll explain you with the help of examples, वो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। Then we are moving to preamble, 3 times revision because this is not for just prelims, pre, paper 2 in mains and your essay, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। I'll make you write essays also, ठीक है, ये मत सोचना बच रहे हो इस बैच में, ये बैच आपको अच्छे से हार्डकोर तरीके से परेशान करेगा। तो अगर आप रेडी हो, इफ यू आर स्ट्रॉन्ग हार्टेड,
ठीक है, रॉक हार्टेड, स्टोन हार्टेड, प्लीज स्टे इन द बैच, वरना आप निकल भी सकते हैं, ठीक है। पर ये बहुत हार्डकोर बैच है, आपको डेली डांट पड़ेगी और हर एक बच्चे से, बिकॉज आई कैन सी एवरीवन ऑन स्क्रीन, 33 स्टूडेंट्स, सोहम भी है, अशोक भी है, विजय भी है, मनीषा, आकांक्षा, अमृतांश, ठीक है, तनु, एवरीवन, साहिल, कार्तिक, आई कैन सी ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो आई नो हु ऑल आर, यू नो, आई एम राइटिंग डाउन द, लेट्स से आप ये समझ लो प्रेजेंटेशन आपकी वो प्रेजेंट एब्सेंट लग रहा है, प्लस रिकॉर्डिंग है लेक्चर की, सो आई कैन सी यू एनी टाइम, ठीक है, मैं देख सकती हूँ कितने बच्चे आए थे। So I will, you know, any time in between the lecture, I can just take your name and ask you, last lecture में what did we study and explain it to us. ठीक है, तो accountability has to be there ना, ये क्या पढ़ा के मैं चली गई, बैठे हुए हो तुम नोट्स बना के भाग गए, ये थोड़ी चलेगा, ठीक है। Accountability will be there. Citizenship and fundamental rights, again 3 times revision इसकी must है, ठीक है। Again ये paper 2 prelims pub-ad optional, it is important. ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये आप एक टाइम भी रिवाइज करो चलेगा, इसमें से क्वेश्चन मेंस में नहीं पूछे जाते, मेंस इज करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, दिस इज प्रीलिम्स ओरिएंटेड, तो ये तो एक बार पढ़ के ही रट जाता है, ठीक है। तो पर एटलीस्ट 2 टाइम्स इसको आप रिवाइज जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये 7th पॉइंट हो गया आपका, 8th पॉइंट पे आते हैं। 8th इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, स्टेट लेजिस्लेचर। ये टॉपिक मुझे बहुत मुश्किल से समझ आया, ठीक है, because it is tricky, the number of seats, the rules, regulations, procedures बहुत tricky हैं, but I have devised a storyline for state legislature. एक मैंने movie line बनाई है इसकी, तो when we'll study state legislature, I'll show you that images or those images of actors and movies. तो आपको ये रट जाएगा, ठीक है, don't worry. यही फायदा होता है किसी ऐसे से पढ़ने का जो खुद पागलों की तरह मेहनत करके आया है, ठीक है। तो उसने अपने टाइम पे वियर्ड चीजें यूज की हैं रटने के लिए, चीजों को समझने के लिए, एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू मस्ट फॉलो फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, दैट इज द 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। हु कैन टेल मी इन द चैट सेक्शन व्हाट आर द, चैट सेक्शन में फटाफट बताओ, 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट क्या होते हैं? द 3 ऑर्गन्स, साहिल वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, तान्या, सोहम, तनु, अशोक, सौरिश, मनीषा, मनीषा वेरी गुड, दिव्यांश, आरोही, भाग्यश्री, आनंद, श्री वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, संस्कृति वेरी गुड, संस्कृति बहुत प्यारा नाम है, इवन विमल सर्स डॉटर्स नेम इज संस्कृति, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, सबसे पहले क्या आएगा? हु विल टेल मी? आकांक्षा, एक्सीलेंट। सबसे पहले legislature. Who will tell me why legislature? Why not judiciary? Judiciary is the soul. Judiciary is where we get justice. Why not judiciary first? Ashok, जल्दी से बताओ। Very good. Laws. Formulation of laws. है ना भाई? Judiciary will act or provide justice to you only on the, you know, laws which are in existence. लॉज वॉज कुछ नहीं है, कहां से जुडिशरी किस बेसिस पे इंटरप्रिटेशन करेगा? आप किस बेसिस पे अपनी यू नो प्रॉब्लम्स लेकर जाओगे? यू आर यू नो डिप्रेस्ड और यू आर नॉट लाइकिंग अ पर्टिकुलर लॉ इन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, ओनली देन यू विल गो टू द जुडिशरी ना, कि भाई दीज आर द राइट्स व्हिच हैव बीन ऑफेंडेड, दीज आर द लॉज व्हिच हैव बीन ऑफेंडेड, दीज आर द लॉज व्हिच आर टेकिंग अवे आवर राइट्स, राइट? तो लेजिस्लेचर विल कम फर्स्ट. आफ्टर लेजिस्लेचर द सेकंड वुड बी, yes Sorish, excellent. अशोक, प्राश, साहिल बहुत बढ़िया, सोहम वेरी गुड, भाग्यश्री वेरी गुड. एग्जीक्यूटिव, व्हाई लेजिस्लेचर के बाद एग्जीक्यूटिव क्यों? लॉज हैव बीन क्रिएटेड, व्हाई नॉट जुडिशरी नाउ? लॉज तो बन गए ना, जुडिशरी क्यों नहीं? तनु, व्हाई नॉट जुडिशरी? यस अशोक, प्राश, आरोही, दिव्यांश, चांदनी वेरी गुड. बिकॉज वंस लॉज आर क्रिएटेड, those are, that is just पेपर वर्क ना भाई, उसको एग्जीक्यूट भी तो कराना है, उसके बाद ही तो लोगों तक पहुंचेगा, है ना? Once laws have been made, they have been debated, discussed and passed, that is just paper work kind of thing. ठीक है, verbally आपने बोल दिया कुछ और पेपर पे लिख दिया, but actually to implement it on the field, that would be executive's role. Executive में कौन आता है, जल्दी से बताओ. Yes अशोक, PM आता है. Yes, then अभी जल्दी से लाइव एग्जांपल दो मुझे अशोक. यस वेरी गुड प्राश, आप लोग आते हो, ठीक है. यू आर गोइंग टू बी, राइट इट डाउन.
देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी है, नहीं, ये अनरियलिस्टिक है. व्हाई अनरियलिस्टिक? व्हेन यू हैव जॉइंड दिस प्रिपरेशन, द गोल इज टू बिकम एन आईएएस और आईएफएस और आईपीएस. दिस इज नॉट अनरियलिस्टिक. ये तो रियलिस्टिक है ना, रियलिटी है, तुमको बनना ही तो है, तभी तो तुम पढ़ रहे हो, वरना कोई पागल है जो अपनी दिन रात एक करेगा पढ़ने के लिए, है ना. यू आर द एग्जीक्यूटिव, यू आर गोइंग टू वर्क, यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट. ठीक है. नाउ कम्स जुडिशरीज रोल. आर दे इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर और इंडिपेंडेंट? एक दूसरे पे टंगे हुए हैं क्या? जैसे हम लोग कभी कभी इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं पेरेंट्स पे या पार्टनर्स पे या दोस्तों पे. आर दे डिपेंडेंट ऑन ईच अदर और दे वर्क इंडिपेंडेंटली? करेक्ट अमृतांश. दे आर इंडिपेंडेंट ऑल्सो एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑल्सो, बोथ. हमारी तरह टॉक्सिक डिपेंडेंसी नहीं होती इनमें कि हम इमोशनली हो गए किसी पे डिपेंडेंट. ठीक है. Why they are interdependent? Because they keep a check on each other. So that is why we say there is a system of checks and balances. इसीलिए हम बोलते हैं checks and balances का system होता है. They keep a check on each other. Why? To maintain balance, so that one organ of the state is not becoming dominant. एक में ज्यादा ईगो ना आ जाए, इसलिए एक दूसरे पे नजर रखते हैं. They keep an eye over each other to maintain balance, so that they can remove the ego from each organ and work in synchronization. If legislative, let's say, it's become very egoistic, do you think executive or judiciary will exist? No. जुडिशरी को तो फाड़ फेंक देंगे, ऑटोक्रेसी हो जाएगी, डेमोक्रेसी गई भाड़ में. ठीक है. So always remember there is a system of checks and balances between these three organs of the state. Why they are checking each other? To maintain a balance. So they are independent also, they are interdependent also. ठीक है. Because without legislature, executive will not exist. Without executive, judiciary will not exist. है ना. बस बातों से ही लॉ बन रहे हैं, कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो जुडिशरी का क्या रोल रहेगा? और लॉ बन रहा है और एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो एग्जीक्यूटिव का क्या रोल रहेगा? ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर कि दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड दे आर इंडिपेंडेंट. इस पॉइंट को हमेशा याद रखना. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स मूव अहेड. तो वी आर गोइंग टू स्टडी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी अपनी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं. बेसिक मतलब पढ़ेंगे इसके ऊपर. देन 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज सेंटर स्टेट रिलेशंस. देयर इज अ टर्म फॉर इट. हु विल टेल मी इन द चैट सेक्शन? लेट्स सी कितने बच्चों ने स्कूल में एनसीईआरटी जो पढ़ी थी वो याद है. अशोक, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया. फेडरलिज्म. व्हाट इज फेडरलिज्म? भाग्यश्री, वेरी गुड. बट व्हाट इज फेडरलिज्म? ये टर्म तो हमें पता है. फेडरलिज्म होता क्या है? यस, सोहम, वेरी गुड. पावर शेयरिंग, प्राश, सेंटर स्टेट रिलेशन. देखो, फेडरलिज्म बेसिकली इन वेरी यू कैन से क्रूड टर्म्स इट इज ब्रदरहुड. ठीक है. बहुत ही ऐसे गांव की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ ना, भाईचारा. ठीक है. इन वेरी लेमैन्स टर्म, अगर बिल्कुल somebody is not even, he has not even heard about UPSC, he has not studied polity, if you want to explain that person what is federalism, unity, brotherhood, the emotion of sharing. ठीक है. फेडरलिज्म, फेडरल रिलेशंस, ब्रदरहुड वाले रिलेशंस हो गए. ठीक है. बट center and state relations, they have the element of federalism. Why? Because whenever the finance commission is created, funds are given to the states. It is given to the state as a vertically and it is distributed among the states horizontally. There was an editorial yesterday. I hope you have studied it. Finance commission के ऊपर editorial था, नया finance commission आने वाला है. ठीक है. So I hope you have studied it. If not, please study it today. ठीक है. तो फाइनेंस कमीशन ये जो कर रहा है, इट इज गिविंग फंड्स टू द स्टेट, डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अमंग द स्टेट्स. दिस इज बिकॉज ऑफ फेडरलिज्म ना, कि भाई यूनियन जो सेंटर है वो फंड स्टेट्स को भी दे रही है, उनके आपस में फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, सो दैट दे कैन कीप ऑन मैनेजिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम. है ना. दैट इज अ सेंस ऑफ शेयरिंग, सेंस ऑफ ब्रदरहुड. दैट इज व्हाई वी ऑल आर टुगेदर इन इंडिया. इंडिया ये फेडरल यूनियन है, हम सब साथ में स्टिक टुगेदर किए गए हैं. ठीक है. Why? This is because of federalism. Federalism is like a glue. ठीक है. सब states इस federalism की वजह से चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ. Whenever you look at Indian map, the states, ये जो आपस में states लगे हैं, this boundary, just consider it as federalism. ठीक है. We are glued together. Federalism का basic concept समझ आ गया सबको? ठीक है. 10th point पे आते हैं.
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गांधी जी फेवरेट टॉपिक, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। गिव मी 2 एग्जांपल्स फटाफट, इतना इजी है, ये तो बचपन से देख रहे हो। इन दिल्ली, इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट स्वच्छ भारत का इरादा, वो कूड़े वाला आता है सुबह सुबह गाना बजाते हुए, ठीक है, तो आपने जरूर सुना होगा दिल्ली में अगर आप रह रहे हो, आगरा में भी अगर रह रहे हो। यस वत्सल्य अमृतांश, कौन कर रहा है ये सब? एमसीडी है ना। क्या हो गई एमसीडी, किसका पार्ट हो गई? वेरी गुड, मेरठ में भी होता है, वेरी गुड, सुबह सुबह का अलार्म है ये मेरा, ठीक है, जो गाना बजता है ना ट्रकों में कूड़ा लेने आते हैं, तो ये अलार्म है हमारा, वेरी गुड। तो ये हो गया म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, ठीक है। ये तो बहुत इजी चैप्टर्स हैं, इससे तो बच्चा नहीं, पता नहीं क्यों बच्चे डरते हैं, ठीक है, बहुत इजी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज क्लोज टू ऑल ऑफ आवर हार्ट्स। लोकल, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ का एक और वर्ड गांधी जी ने दिया था, क्या था जल्दी बताओ? देयर वाज अनदर वर्ड given by Gandhi ji to denote self. स्व, स्व means self, ठीक है, स्व means self, संस्कृत वर्ड है ये। Always remember if they ask you to write an essay on the concept of Swaraj, self, Raj means governance. Governance is a part of our GS paper 2 that we'll study in this course, don't worry. Swaraj, self governance. Swa means your आत्मा, you, self, ठीक है, संस्कृत वर्ड है, ये हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओ, अभी तक क्लास मजेदार लग रही है, समझ आ रहा है, इजी लग रहा है पॉलिटी, या थोड़ा सा लग रहा है कि मैं टेक्निकल हो जा रही हूँ? जैसे कि बुक है टेक्निकल, वैसे ही मैं हो गई टेक्निकल, नहीं? ठीक है, ओके, इट्स काइंड ऑफ इजी, मतलब लाइट लग रहा है, ठीक है, मुझे पॉलिटी बहुत टफ लगता था, बट लाइट लग रहा है ना, ओके, वेरी गुड। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट we'll study, then we'll study a chapter which we'll study in table format. लिख लो अभी, अगर मैं मान लो पैराग्राफ में पढ़ाने लगूं तो मुझे टोक देना, ठीक है, just wrote it down. If by chance when I come to this chapter and I teach you in paragraph format then or flowchart format, let me know then and there, मैम you told us कि tabular में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो first is constitutional bodies, पहला हो गया यहाँ पर constitutional bodies, second will be non-constitutional bodies, second will be non-constitutional bodies. इसके ऊपर question are coming only in prelims and in mains only those constitutional और non-constitutional bodies will be asked जो last 6 months में news में रही हैं, exam से last 6 months में, ठीक है, तो हम तो सारी ही पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में when they were established, how they were established, are they statutory or non-statutory, quasi judicial, judicial bodies, roles and objectives, बस इतना ही, members, यही चीजें पढ़नी होती है इन दोनों में, कुछ और नहीं पढ़ना, दैट इज बाय टैबुलर फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। ये हो गया मेजर पॉलिटी की स्टडी, देन वी विल स्टडी पॉलिसीज, ये करंट अफेयर बेस्ड है। नाउ फ्रॉम हियर आफ्टर 12th आफ्टर 11th लेक्चर पॉलिसीज स्टार्ट हो जाएंगी, पॉलिसीज, बिल्स एंड एक्ट्स, ये है हमारा करंट अफेयर ओरिएंटेड, जो थोड़ा टेक्निकल है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इट इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स टू रिमेंबर ऑल दीज पॉलिसीज, बिल्स, बट व्हेन आई एम हियर यू डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट हैव टू रिवाइज। इतना आपको टेंशन लेनी है कि भाई अगली क्लास में कल की क्लास का कुछ पूछ लिया तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी अगर नहीं आता होगा, ठीक है, ये टेंशन आपको लेनी है हर दिन, एवरी डे यू जस्ट हैव टू take this tension कि if ma'am asks us कि what did we study in the last class, tell me this about this article or that article, and if we are not able to tell her then she is going to scold us in front of everyone, this much tension ये आपको लेनी है, ठीक है। सो हम सबसे ज्यादा डांट खा चुके हैं एंड मुझे लग रहा है इस बार भी खाएंगे, ठीक है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ना खाएं, ठीक है, ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। करंट अफेयर्स वाला पोर्शन मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ने वाला है, सो मेनी एक्ट्स हैव बीन पास्ड एंड देन आफ्टर 12th लेक्चर हमारा स्टडी स्टार्ट हो जाएगा मेंस पे फोकस, बिकॉज वील स्टार्ट विद आवर गवर्नेंस की जर्नी, गवर्नेंस इज डिफरेंट, ठीक है। देयर आर स्टूडेंट्स हु आस्क मी थ्रू मेल्स, मैम पॉलिटी एंड गवर्नेंस आर सेम, नो, ठीक है, पॉलिटी में वी स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस में वी स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द डिफरेंस। गवर्नेंस में वी स्टडी अबाउट रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, आपके बारे में पढ़ेंगे हम, इसमें आपको पता तो चले हम किसके लिए पढ़ रहे हैं। गवर्नेंस इज द थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू योर एंटायर लाइफ टिल द एज यू अटेन 60 एंड 60 के बाद इफ यू बिकम क्लोज टू सम चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर देन यू आर गोइंग टू वर्क टिल योर 90s। अगर 60 के बाद रिटायरमेंट के बाद अगर किसी मिनिस्टर के फेवरेट हो गए अपने काम की वजह से तो फिर आप समझ लो 90 की उम्र तक काम ही करना है, और हो सकता है पॉलिटिक्स में भी घुस जाओ, कोई किसी का कोई भरोसा नहीं,
ठीक है, दिस इज द फैक्ट। मैं कोई आपको इमेजिनेशन वाली स्टोरी नहीं बता रही। स्टडी अबाउट एस जयशंकर जी, ठीक है, स्टडी अबाउट डोभाल जी, ठीक है। तो इन लोगों के बारे में पढ़ो, समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। आपका रोल 60 तक का नहीं है, और आपका रोल सिर्फ गए इस फील्ड में विजिट कर लिया, डायरी लेकर चलेगा, ये करना आपका रोल नहीं है। आपका रोल बहुत डीपर लेवल पर है, जो आप किसी को बता भी नहीं पाओगे, नॉट इवन टू योर फैमिली मेंबर। सीक्रेटिव रोल रहता है एक IAS IPS IFS का, इवन द IRS। You have to keep so many secrets in life. Do you know it? About the government, about so many things happening in the government. ठीक है, तो आपको अभी बहुत स्ट्रॉन्ग होना है अभी से। गवर्नेंस इज द एरिया वेयर आई एम गोइंग टू डेल्व into some secrets which were shared by my own Masi, who is an IAS officer. ठीक है, तो काफी कुछ ऐसी बातें हैं जो I am allowed to talk about it. She told me you are allowed to share it with your students for examples. ठीक है, so I'll tell you the deep dark secrets about IAS officers job. ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहना है। There is a term called loyal bureaucracy. How many of you have heard about it in the newspaper? Even in interview, it was asked a lot of times to a lot of my friends. This term is not being taught anywhere. कोई नहीं पढ़ा रहा है इसके बारे में, और ये टर्म इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। They are asking this term in interview. So we are going to talk about it in governance. Okay, loyal bureaucracy. How many of you have heard about lateral entry? ये तो सबने सुना है। Lateral entry into IAS, IFS, IPS सबने सुना है ना? Tell me in the chat section. Lateral entry into civil services. How many of you have heard about it? सुना है कि if you are eminent in some fields, you can directly without giving any exam enter into the civil services. But that is beyond 40-45 की एज के बाद। अगर आप किसी फील्ड में, whether as an entrepreneur, whether as an educator, you have been well established, you have achieved something good, meaningful for the country, you can gain entry into the civil services. But again उसके लिए qualification बहुत ही high चाहिए। ठीक है, yes, limited time के लिए होता है। ठीक है, so again we study about lateral entry, the pros and cons of it, कि क्या pros हैं। कभी कभी देखो, sometimes government uses lateral entry for their benefit, agreed or not. They will favor some people from, some people having business acumen to provide them entry to the areas where they want to work according to their wish, है ना। तो lateral entry कभी कभी government can use for their own benefit. How we will study it, कैसे हो सकता है ये, वो भी हम पढ़ेंगे। पुलिस रिफॉर्म्स, कितने बच्चों ने सुना है इसके बारे में? पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट, बिकॉज आप में से बहुत होंगे जो IPS में जाने वाले हैं। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस मॉडल, सेवोत्तम मॉडल? कितने बच्चों ने सुना है, बताना जरा। सेवोत्तम मॉडल, सोहम नहीं सुना? यानी कि लास्ट ईयर प्रिपेयर किया था UPSC के लिए? जल्दी से बताओ, कौन से ईयर में लास्ट आपने मेंस के लिए प्रिपेयर किया था अच्छे से? बिकॉज ये सेवोत्तम मॉडल मेंस का पार्ट है, और सबसे पहले यही पढ़ा जाता है। आनंद सेइंग नो नो, ओके, तो डोंट वरी। अच्छा, ओके, सो आई अंडरस्टूड। कार्तिक पढ़ा था इस साल, ठीक है। सेवोत्तम मॉडल ये गवर्नेंस का सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है। ये मैं कोई भी चीज आपको छोड़ने नहीं दूंगी, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। हाँ, आप अपनी तरफ से रिवाइज ना करो और अपनी तरफ से छोड़ दो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। हाँ, सर्विस में उत्तम, सेवोत्तम मीन्स, सेवा मीन्स सर्विस, उत्तम मीन्स ग्रेट, द बेस्ट। सो द पर्सन हु इज बेस्ट इन सर्विस, सेवोत्तम। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट सबको समझ आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ चीजें हैं जो गवर्नेंस पे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ये हमारा बैच रहेगा, दिस वुड बी आवर बैच। अब मैं आपके डाउट्स लेने वाली हूँ, बट उससे पहले, बिफोर टेकिंग योर डाउट्स, a little information that I want to share. I'll share the screen with you. ठीक है, मुझे 1 सेकंड का टाइम दो, मैं आपको स्क्रीन ही शेयर करके बताती हूँ। हाँ, just give me a second. Please let me know if you can see the screen. सब बच्चे देख पा रहे हैं ये? देख पा रहे हो? ठीक है, दिस इज शक्तिमान। ये कौन है? ये है शक्तिमान जी महाराज। नाउ इफ आई आस्क शक्तिमान, ठीक है, कि शक्तिमान शेयर विद मी द सेवोत्तम मॉडल, ठीक है, प्लीज लेट मी नो आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं। ठीक है, अच्छा,
दिख रही है ना, शक्तिमान इज टाइपिंग, सबको दिख रहा है? तो सेवोत्तम मॉडल मैंने पूछा, आई वॉज स्टडिंग गवर्नेंस, आई वांटेड टू नो व्हाट एग्जैक्टली सेवोत्तम मॉडल, एंड सी शक्तिमान ने मुझे 3 पैराग्राफ्स में समझा दिया ऑन स्पॉट। कितने सेकंड्स में? 10 सेकंड में। हाउ मेनी सेकंड्स? 10 सेकंड्स। प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, कैन यू सी दिस प्लस ऑप्शन हियर? चैट सेक्शन में जल्दी से बता दो मुझे एक बार टाइप करके, कैन यू सी दिस प्लस ऑप्शन हियर? एवरीवन, आकांक्षा इज सेइंग यस यस, ओके। This is the place where we can upload our mains answer sheet. If I give you a homework question today, मैंने आज आपको एक homework question दिया. What you can do is I've given you all the free link to access Shaktiman in the Telegram group. Have you accessed it yet? Please let me know chat section में बताओ. मैंने आपको free access करने का link दिया था, ठीक है? तो आपने वो link access किया, ठीक है? अब आज से 30 दिन क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? From today, next 30 days, what you need to do. After every class, I'll give you 4 questions related to mains. 4 questions. You will have to attempt any 2. कोई भी 2 attempt करना. Upload it on Shaktiman using this plus option. PDF में convert करना और Shaktiman पे upload करना इस option को use करके, ठीक है? Once you do it, you will get the feedback which I have given to Shaktiman. जिस basis पे, जिन parameters पे मैंने Shaktiman को कहा है कि ये चीजें आंसर में होनी ही चाहिए, वही चीजें आपके आंसर में शक्तिमान चेक करेगा। उस बेसिस पे स्कोर दिया जाएगा और उस बेसिस पे आपको फीडबैक मिलेगा। द पॉइंट इज कि यू हैव टू शेयर दैट फीडबैक विद मी, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप में फीडबैक मेरे से आपको शेयर करना है, ठीक है? सो दैट आई कैन मेक अ लिस्ट। मैं एक रिपोर्ट कार्ड आपके लिए तैयार करूंगी जो सेम चीज शक्तिमान भी करेगा। आकांक्षा इज सेइंग आई एम अ फ्रेशर, आई डोंट नो हाउ टू राइट आंसर। आकांक्षा, यू नो हाउ टू राइट एन आंसर। इफ आई टेल यू टू राइट अबाउट let's say the moon, you can write 4 words, right or not? Is it wrong? Please tell me, Akansha. मैं आपको बोलूं टाइगर के ऊपर 5 words, 5 सेंटेंस लिखकर दिखाओ, लिख लोगे ना? How can you say that you don't know how to write the answer? If I explain you about right to equality, Akansha, ठीक है? Tell me very honestly, मैंने आपको right to equality explain किया आज, and if I ask you to write about right to equality, ठीक है? वही तो चाहिए। अभी स्टार्टिंग से प्रो किसको बनना है? यही तो गलती है बच्चों की। हमको स्टार्टिंग से ही A1 बनना है, ठीक है? हम गलती करना ही नहीं चाहते, डांट खाना ही नहीं चाहते, हम मिस्टेक्स करना ही नहीं चाहते। यही ईगो हमको हटाना है। हमको स्टार्टिंग से प्रो या मास्टर नहीं बनना, हमको सबसे गधा स्टूडेंट बनना है स्टार्टिंग में। वी हैव टू बी द मोस्ट डम्बेस्ट स्टूडेंट वी कैन बी इन द स्टार्टिंग, देन ओनली वी विल शाइन आफ्टर 1 वीक और 2 वीक्स। मेरे साथ तो 2 हफ्ते में शाइन करने लगोगे, डोंट वरी, ठीक है? So I will explain a topic. For example, today we have studied about, let's say, Charter Act. I'll give you a question, not a heavy question from mains ka question paper. No, I'll just ask you, explain Charter Act 1853 or 1833. Will you be able to write it, Akansha? I explain to you what is Charter Act 1833 and I ask you, explain to me now. Will you be able to? Yes, simple. A से शुरू करना है, नाम लिखने से शुरू नहीं करना। पहले ABCD सीखेंगे, फिर नाम लिखना सीख लेंगे अपने आप, ठीक है? ये अप्रोच हमारी क्लास में रहेगी। सेम थिंग, यू हैव टू अपलोड व्हाटएवर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज होमवर्क, अपलोड इट ऑन शक्तिमान, गेट इट इवैल्यूएटेड एंड शेयर द फीडबैक विद मी, ठीक है? अमृतांश, यूज द अडोबी ऐप, अडोबी स्कैन का ऐप है, उससे पिक्चर लेनी है, PDF में कन्वर्ट करना है, देन अपलोड इट ऑन शक्तिमान फ्रॉम योर फोन, ठीक है? अडोबी स्कैन ऐप यूज करना, हो जाएगा, डोंट वरी। कोई भी दिक्कत है तो मेरी टेक्निकल टीम है, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है, दिस इज माय टेक्निकल टीम, ठीक है? एंड दे आर इन टच विद मी 24/7, contact@shaktiman.ai। तो ये मेरे साथ 24/7 टच में रहते हैं, मतलब इवन एट नाइट 4 AM दे कैन कॉल मी अप एंड दे वेक मी अप, मैम स्टूडेंट्स आर हैविंग दिस प्रॉब्लम, हेल्प अस आउट। कैसे हम उनको गाइड करें, ठीक है? तो इसीलिए मैं 24/7 रहती हूँ। ये ईमेल ID अपने पास सेव करके रख लो, ओके? कार्तिक सिंह, हाउ टू, अभी वो फीचर हमने डाला नहीं है कार्तिक, नेक्स्ट वीक आएगा, 19th से आएगा वो फीचर, ठीक है? 19 जून, डोंट वरी। साहिल, ये प्लेटफॉर्म मैंने ही बनवाया है, ठीक है? डोंट वरी, मेरा ही प्लेटफॉर्म है, मेरा और विमल सर का। सो वी टू हैव वर्कड ऑन इट सिंस मेनी मंथ्स, आई गेस जनवरी 2023 से हम काफी इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इट इज नॉट समथिंग कि आई एम वर्किंग फॉर समवन, इट्स माइन ओन, ओके? तो इसीलिए आपको इस तरीके से जर्नल यूज मत करो, अडोब यूज करो। अमृतांश, एक बार करके देखो, ठीक है? सौरिश, यस,
मतलब आप कुछ भी पूछो इससे, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा. शक्तिमान इज लाइक समथिंग, इफ यू आर रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर, कीप द हिंदू न्यूज़पेपर ओपन, कीप शक्तिमान ओपन. Whatever doubt you are having in the Hindu newspaper, ask Shaktiman instantly. He will answer you. ठीक है. Let's forget about Shaktiman for some time. अब ये बताओ बैच समझ आया? ठीक है. 30 क्लासेस रहेंगी, जिनमें से 20 क्लासेस will be for prelims, 10 classes will only focus on mains. The concept that we are going to study only focus on mains. Let me know in the chat section. स्मृति पे करना पड़ेगा हमें 1000 रुपीज. अभी तो फ्री है ना. आई गेव यू द लिंक ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप. 30 डेज के लिए फ्री है, मैंने लिंक दिया हुआ है आपको, है ना. देन आफ्टर 30 डेज इफ यू विश टू बी अ पार्ट ऑफ इट, देन अभी तो फ्री है 30 डेज. मैंने ग्रुप पे लिंक शेयर किया हुआ है, क्वालिटी वाले ग्रुप पे, तभी मैंने आपको दिया कि 30 डेज यूज करके देखो. देन इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ शक्तिमान फॉर योर एंटायर प्रिपरेशन, उसके लिए सेपरेट आप मुझसे बात कर सकते हो. आई प्रोवाइड यू अ लिंक, डोंट वरी. अभी पैसों के चक्कर में मत पड़ो, फ्री लिंक दिया है मैंने, इसीलिए इतना सोचो मत. यूज करने का सोचो कि मैं कैसे अपने लिए यूज करूं. किसी भी रिसोर्स को, टेक्नोलॉजी को हम पॉजिटिवली कैसे यूज कर सकते हैं. आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोज एजुकेटर्स जो क्लास में आकर आपको बोल दे ये पढ़ो और जाओ. मुझे कोई आंसर चेकिंग से मतलब नहीं है, मुझे कोई डेली मॉनिटरिंग से मतलब नहीं है. मेरा काम हो गया पढ़ा दिया. ठीक है. आई वॉन्ट टू बी समवन जो आपके साथ 24/7 रहे, क्योंकि मैं देखती हूँ सीरियसनेस. कोई बच्चा 499 रुपीज पे करके क्लास में आ रहा है ना, तो वो बेवकूफ नहीं है. 500 रुपए मुझे पता है क्या वैल्यू होती है. सीरियस है बच्चा. ठीक है. शक्तिमान की वैलिडिटी अभी 30 डेज फ्री है. उसके बाद 2 मंथ्स, इफ यू पे वंस, 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके पास रहेगा. हम एनुअल भी स्टार्ट करेंगे, बट अभी उस चीज में मत पड़ो. ठीक है. फ्री है, टेस्ट करो, फीडबैक दो कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है. I've just launched it. I want your feedback, nothing else. Now tell me if you have any other doubt. भाग्यश्री, I've shared the link. Telegram पे मैंने बुक्स का लिंक शेयर किया. वो बुक आपके पास इस बैच में होनी चाहिए. एक एम लक्ष्मीकांत and another is 28 years PYQs Oswald books. I've shared the links. ठीक है. Get that book. उस बुक को ले लो फटाफट से. Anyone having any doubt यहाँ तक बैच को लेके? हाँ सोहम, रुको. हाँ सोहम बोलो. Actually, ma'am, I showed you some answers that I posted on Shaktiman for evaluation, and I showed you the marks for that as well. Did you feel it good? I mean, 9 and 11. I showed you personally, I think, on Telegram last time. Okay. 9 and 11 in one. Yeah, but they good because I don't feel that much marks I deserve, you know. In one out of did you get the feedback correct? Marks को भी भूल जाओ, because अभी फर्स्ट वीक हुआ है ना लॉन्च हुए, तो इसलिए वो स्केलिंग करना मैं सिखा रही हूँ शक्तिमान को कि यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से हाईएस्ट आप 5 तक जा सकते हो और 6 तक. ठीक है. 9 तक तो जा ही नहीं. that is why I felt it slightly strange as getting 9 and 11 out of 15. No, don't look at the score for the starting 2 weeks. After 19th June, because 19th June तक I am training Shaktiman regularly by uploading my own answers कि this is the scaling process of UPSC. इससे ऊपर जाता ही नहीं है ना. 19th June के बाद टेक अच्छे से सब सीख जाएगा शक्तिमान. मतलब all my brain I am basically putting it in Shaktiman. You must have seen that movie जिसमें मैं नाम भूल रही हूँ. This girl got converted into a computer. मतलब सब कुछ डाउनलोड उसने कंप्यूटर में कर दिया था. I don't know which the name of the movie. I don't remember. ठीक है. So I am downloading my brain into Shaktiman, but 19th June के बाद it's going to give you the correct score. So focus only on the feedback अभी. Feedback भी I am. Yeah, feedback I got. In some parts it was quite well. In some parts it was slightly weak because since last 6 months I've been away, so I forgot how to frame the answers. That is no. Is the fact. Okay, so 19 जून के बाद स्कोर सही हो जाएगा आपका. फिर आप कितना भी बढ़िया आंसर लिखो 6 से ऊपर नहीं जाएगा. फिर आप बोलोगे मैम 6 से ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि 6 में आपका 90% है यूपीएससी में. Yeah. I got a mail as such as well from Shaktiman's part. Yeah. Okay. Anyone? Ma'am can be timing a little bit early. Ashok, yes, I'll try to keep it at 7 PM. ठीक है. मैं से क्योंकि many students were mailing me कि मैम we have jobs. हम रात को 9-10 बजे आते हैं. We have college. Yes, Nakul, Lucy. The movie was Lucy. Yes. Same thing I'm going to do with Shaktiman, but I am not going to get evaporated. Don't worry. ठीक है. Just the knowledge sharing part I'm going to do. So please let me know in the chat section. सब satisfied हैं आज के introduction से? हाँ साहिल, Black Widow थी उसमें Lucy. सब लोग आज के सेशन से. अशोक, आर यू सेटिस्फाइड? पॉइंट नंबर 8 के बाद. ओके, अभी बताते हैं. पॉइंट नंबर 8 के बाद, दिस इज पॉइंट नंबर 8. देन वी हैव स्टेट लेजिस्लेचर, वी हैव सेंटर स्टेट रिलेशंस.
देन वी हैव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एंड वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर यू विल गेट, ठीक है, आई विल पुट टाइम स्टैम्प्स, डोंट वरी, ठीक है। रिवीजन, निक्की सिंह रिवीजन कितनी बार, अच्छा कितनी बार करना है वो मैं उसी वक्त बताऊंगी जब सेंटर स्टेट रिलेशंस में देर आर मेनी पार्ट्स ना, तो मैं तभी बताऊंगी। जो मैंने अभी तक बता दिया वो आप लिखो, ठीक है, यहाँ तक मैंने बताया है 7 तक, इतना अभी लिखो। बाकी का रिवीजन, नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन, आई विल टेल यू व्हेन आई विल एक्सप्लेन दैट चैप्टर टू यू, ओके। अमृतांशी सिंह, शेड्यूल्स एंड आर्टिकल्स के बीच में डिफरेंस, ओके। देखो बेसिकली these are articles, ठीक है, articles have been written, what rights you will be given in what article, but after writing the article, framing the article and putting it in the constitution, you know, people evolve, their knowledge also evolve. So the framers, article framers, thought about some other value additions which can be made to the articles. Those were put separately into tables. Those tables are known as schedules, ठीक है। जैसे कि आप नोट्स बना लेते हो, फिर आपको याद आता है ये पॉइंट भी ऐड करना था, जगह नहीं बची, तो नोट्स आपने स्टिकी नोट्स लगा लिए, है ना, उसमें लिख दिया, वो शेड्यूल बन गया। दे आर पार्ट ऑफ आर्टिकल्स बट दे आर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्टिकल्स, ठीक है, समझ आया, अभी समझ आ गया, ओके। सो यहीं पर मैम वन फॉर ऑल बुक को कैसे यूज करना है, वन फॉर ऑल वो एनसीईआरटी है बच्चे, ठीक है, तो उसको कैसे यूज करना है, उसमें जो पीवाईक्यूज और जो एमसीक्यूज दिए ना एनसीईआरटी से, उसको कवर करना है। NCERTs have been summarized in 1 or 2 pages in that book. आकांक्षा अभी क्वेरी फटाफट से मैं आपको ना ऐसे करती हूँ, अनम्यूट करती हूँ, ठीक है। Yes, now you can ask your query. I am unmuting you. Yes, Akansha. हेलो, गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम एक्चुअली आज मैंने ना सर्च किया था एडिटोरियल शक्तिमान पे, बट मैम वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है सॉरी बट आई कांट एक्सेस योर 19th June. Don't worry, 19th June. ठीक है। I am working on the score part. शक्तिमान कैसे आपको मार्क्स को स्कोर करेगा, एंड हिंदू न्यूज़पेपर की समरी, एडिटोरियल्स, उसमें से प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन, मेंस रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब हम ऐड कर रहे हैं, शक्तिमान को सिखा रहे हैं। 19th जून तक का टाइम चाहिए बस। मैम वैसे जैसे हम लोग जैसे द हिंदूज पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा न्यूज़ अपडेट होती है, तो मैम उसमें से बहुत सी मतलब अननेसेसरी होती है, तो उसमें मैम कौन सी कॉट अप करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा जब आप सिलेबस को साइड में रखोगे ना अपने। मुझे पता है स्टार्टिंग में टफ लगेगा, ठीक है, बट घबराना नहीं है, सिलेबस साइड में रखो। विच एवर आर्टिकल यू कम अक्रॉस, you have to filter it according to the syllabus. Look at the syllabus, is it falling into any one of those categories, paper 1, paper 2, paper 3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी हैज पास सम स्टेटमेंट जिसके ऊपर बवाल हो रहा है, तो अब आप पेपर में देखो कहीं भी पॉलिटिशियन से रिलेटेड कुछ नहीं है सिलेबस में, है ना। पेपर 2 में गवर्नेंस है, बट व्हाट राहुल गांधी इज सेइंग, हाउ इज इट रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम? नो, इट इज नॉट फॉलिंग इनटू एनी ऑफ द कैटेगरी, सो वी विल नॉट स्टडी दिस न्यूज। अ पर्टिकुलर बिल्डिंग caught fire, not important, है ना। A particular minister has said something about an act, passed some statement, एक बड़ा सा आर्टिकल आ गया है, अब आपको लगेगा इतना बड़ा है तो पढ़ना चाहिए, हमारे सिलेबस में तो है नहीं, काटो। Always remember, in the newspaper every day only 8 to 9 articles are only important. मतलब इतनी सारी न्यूज़ में से 8 या 9 ही पढ़नी होती है, even in the editorials, ठीक है, तो वो हमें सिलेबस से पढ़ना है। दिव्यांश इज सेइंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, देखो आकांक्षा इसमें भी समझना, if disqualification of MP or Rahul Gandhi is there in the news, you don't have to study the entire article, what basis was used, this and that, नहीं, क्या statement pass हुआ, नहीं, just take out the term disqualification of MP because that was in a part of paper 2. सिर्फ उसी को शक्तिमान पे सर्च करो या गूगल पे सर्च करो या एम लक्ष्मीकांत बुक में देखो और उसी को पढ़ो। तो इवन आर्टिकल्स में भी ना कीवर्ड्स ही उठाने हैं हमको, वो भी सिलेबस के हिसाब से, और वो आएगा टाइम के साथ, जैसे जैसे रोज हैबिट डालोगे ना आप, टाइम के साथ वो डेवलप होती जाएगी आपकी आदत। एक हफ्ता लगातार ऐसे प्रैक्टिस करो, एक हफ्ते बाद यू विल सी अ चेंज इन यू। ओके आकांक्षा, लेट मी नो, मुझे लगता है कनेक्शन हट गया, लेट मी नो, समझ आ गया अभी तक? ओके मैम, थैंक यू सो मच। एनी अदर डाउट आकांक्षा? नो मैम, राइट नाउ। ओके ओके, सो यहाँ पर आप लोगों को ना करना क्या है, सिलेबस को साइमल्टेनियसली पढ़ने की आदत लगानी है। इवन ऑन शक्तिमान यू कैन फाइंड द सिलेबस,
उसको ओपन रखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, सिलेबस से मैच करते जाओ. इवन यू कैन आस्क शक्तिमान, इज दिस रेलेवेंट, दिस टॉपिक रेलेवेंट फॉर माय प्रेपरेशन? ही विल टेल यू नो, नहीं पढ़ना है उसको. यू कैन इवन यूज शक्तिमान फॉर दैट एक्सटेंट. ओके, प्लस हमारी क्लास में every day I'm going to give you clip outs of the newspaper articles related with the topic that we are studying. तो आपको उससे भी आदत बन जाएगी कि कैसे हमको न्यूज़पेपर को रिलेट करके पढ़ना है. ओके, एनी अदर डाउट, एनीवन? यस प्रति, डेली स्केड्यूल मिलेगा, डोंट वरी. अभी क्लास के बाद ही आई विल अपलोड द स्केड्यूल कि कल से कितने बजे कौन सी क्लास होने वाली है आपकी. ठीक है, डोंट वरी. I hope you all are completing your targets जो डेली में दे रही हूँ टेलीग्राम पर. All right. तो इसी नोट पर सेशन को यही एंड करते हैं. ठीक है, I'll also open up the messaging part of Telegram group, पॉलिटी वाला ग्रुप, so that you can send your feedbacks and send your doubts. ठीक है. Yes दिव्यांश, प्री क्वेश्चंस का फीडबैक इवॉल्व हो गया है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है. मतलब जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस है वो चेंज हुए हैं, प्रैक्टिस की जरूरत है. क्वेश्चंस तो टफ बनाए हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एरिया बच्चों ने टच ही नहीं किया था, बट ऑप्शन इतने टफ बना दिए कि अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओ तो भी नहीं कर पाओ. इसीलिए टुडे फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ प्लेज कि व्हाटएवर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू फॉर प्रीलिम्स, आई एम गोइंग टू सेट द ऑप्शंस सेम जैसे यूपीएससी सेट करने लगा है, ताकि आपके ब्रेन को स्टिमुलेशन मिल जाए. ठीक है, नहीं पीडीएफ कन्वर्टर या एक ऐप होता है ना प्ले स्टोर पे अमृतांश, अडोब स्कैन, मेरे पास भी है वो ऐप, अडोब स्कैन करके है, यू कैन जस्ट इंस्टॉल दैट. आज के एडिटोरियल के नोट्स दी टेलीग्राम चैनल अर्पिता शर्मा क्लासेस, वहां पर आप शेयर कर सकते हो. ठीक है, हाँ कंप्लीट चेंज हुआ है दिव्यांश, डोंट वरी, हम प्रैक्टिस करेंगे, ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, कंप्लीटली उसको मुझ पे छोड़ दो इन केस ऑफ पॉलिटी. ऑल राइट, सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. थैंक यू एवरीवन. रिकॉर्ड क्लास मिलेगा विपिन, डोंट वरी, सारा रिकॉर्ड क्लास बनेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा आपको लेक्चर. ठीक है, बाय एवरीवन.